to all of you present over here. I, Shubhankar Vats, student of BMS First Professional. It gives me immense pleasure to extend a very warm welcome on behalf of Guru Gorakshnath Institute of Medical Science, Faculty of Ayurveda to all of you. First, I would like to welcome the Vice Chancellor of Mahayogi Gorakshnath University, respected Major General Dr. Atul Kumar Vajpayee sir. For I, on behalf of Guru Gorakshnath Institute of Medical Science, heartily welcomes to today's chief guest, Sri Tej Pratap Tiwari sir, District and Session Judge Gorakhpur, and Dr. Karuna Tiwari ma'am, an eminent personality in naturopathy and yoga practitioner. I welcome our respected Registrar sir, Dr. Pradeep Kumar Rao sir. Now I welcome our principal sir, Professor Dr. Manjunath NS sir. So, to begin with this informative session, we will have our traditional lamp lighting ceremony. For this, I would like to invite our chief guest to come up on the stage for lighting the lamp. Om Ashito Ma Sadgamaya Tamso Ma Jyotirgamaya Mrityurmamritam Gamaya Deepam Jyoti Param Brahma Deepo Jyoti Janardana Deepo Hartu Me Papam Deepo Jyoti Namostute. To pray is to regain a sense of mystery that all animates all being, the divine margin in all attainments. Now, I would like to invite my fellow mates for Dhanvantri Vandana and Saraswati Vandana. धन्वंतरि वंदना। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरवन्दितपादपद्मं लोके जरारुगभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां चम्योम वातावनिवारिवन्नि पंच प्रपञ्चात्मक देहभाजं सन्ताप सम्पात जराज्वरान्तिकं नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् नवीन नीलामुदकान्तिकान्तं शान्तं हरेद्वादशमाख्यमूर्तिं पूर्तिं शतानां सुमनोरथानां नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम्। सरस्वती वंदना। हे शारदे मां हे शारदे मां अज्ञानितासे हमें तार दे मां हे शारदे मां हे शारदे मां
अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर्ग की देवी, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे। तेरी शरण हम, हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की बानी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने। विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, हाथों में वीणा, मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा के अंधेरे, मन से हमारे मिटा के अंधेरे। हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। Thank you all for your melodious voice. I request our Honorable Vice Chancellor, Sir, Major General Dr. Atul Kumar Bajpai, to honor our chief guest, Sri Tej Pratap Tiwari, Sir, and Dr. Karuna Tiwari, Ma'am, by giving memento. Now, moving further, I would like to introduce respected Tej Pratap Tiwari, Sir. Sir was born on 2nd August 1971. Sir has completed his high school in 1987, intermediate in the year 1990, BCom in the year 1993, and completed his LLB in the year 1996. Sir practiced in the High Court from 1997 to 2007. He was appointed and worked as civil court judge in Bihar Judiciary Service from 2007 to 2008. Sir
was appointed in higher judicial service from 15 December 2008. Sir is now posted as district and session judge in the Gorakhpur district. We are very honored for your presence here, sir. Then this informative session will give not only guide us but also educate us regarding our fundamental right. I kindly welcome you, sir, to come on the stage and enlighten us. Please, sir. Good afternoon, one and all present in this hall. Are you all happy? But I don't find many faces smiling here. They are very serious. What I am going to talk about? Do you have any idea? Fundamental rights. Why these fundamental rights? And what is the purpose of having this as a topic of today's talk? Do you have any idea about fundamental rights? Being a human being, we have some sort of right, some rights which are by birth as a human being. Don't you feel that those rights are also very valuable rights? Do you have any idea? How many of you have read about Constitution? Anyone? No, no one. हाई स्कूल पास करके आए हो ना? इतना तो मुझे भी पता है, तो बता क्यों नहीं रहे हो? तो भारतीय संविधान के बारे में कुछ तो पता होगा। हिंदी में अच्छा लगेगा या इंग्लिश में? 5-6 भाषाएं हमें आती हैं, तो आप बोलोगे असमी, बंगाली, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, तो आप किसी भाषा में कहोगे तो मैं बात कर लूंगा आपसे। हिंदी, हिंदी में कितने लोग कन्वर्जेंट हैं? ओ, ज्यादातर लोग। और वीसी साहब भी बोल रहे हैं। हाँ, वीसी साहब अंग्रेजी कितने अच्छे मास्टर हैं, लेकिन हमसे देखिए कह रहे हैं हिंदी हमारी मातृभाषा है। सबसे पहले रुख करना चाहेंगे बेटियों की तरफ। बायस तो नहीं हो रहे हम? हाँ, राव साहब, वेरी वेल सेड। क्या आपके मन में कोई सहज प्रश्न आ रहा है कि एक न्यायाधीश सामने खड़ा हो तो न्यायाधीश से किस कानून की बात हम करेंगे? अगर मौलिक अधिकार की बात हो तो वो कौन सा मौलिक अधिकार है जो विशेष रूप से बेटियों को, महिलाओं को, स्त्रियों को मिलना चाहिए? अनुभव है आपको कुछ? आपके मन में कोई सहज प्रश्न है क्या? मैं एक न्यायिक व्यवस्था से न्यायिक अधिकारी होते हुए यदि न्यायिक प्रावधानों को आपके सामने न्यायिक रूप में रखूंगा तो आप बोर हो जाएंगे। आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आप बताओ अपने जीवन में आपको कभी कोई प्रश्न, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा कौतूहल, कोई ऐसी जिज्ञासा आपके मन में हो? If you have any query, anything which you really want to ask, which has come into your mind, speak out. This is the time when I can talk to you directly based on the fundamental rights of the Constitution. बहुत बड़ी बड़ी बात, बड़े बड़े ज्ञान किसी काम के अगर समझ में ना आए तो वो काम के होते हैं क्या? जो समझ में आए वही काम के है ना। तो आपका कोई समस्या आपकी हो, आपकी कोई परेशानी हो, तो आप उसको बताओ, मैं उससे जुड़े आपको उपचार बता दूंगा, प्रावधान बता दूंगा, अधिकार बता दूंगा, आप सजग हो जाओगे। इस कमरे में सब लोग सो रहे हैं या जग रहे हैं? रियली जग रहे हैं? यस और नो? हाँ, देखो पहले यस में, बात के यस में फर्क है। फंडामेंटल राइट्स जिसके बारे में आज बात करने के लिए वीसी साहब और स्टाफ साहब ने मुझे बुलाया है,
उसका बुनियाद ही यही है कि आप जग जाओ। ये अधिकार तभी मिलेंगे जो जगे होंगे। यदि आप सो गए तो कुछ नहीं हो सकता। तो अब अगर आप जगे हुए हो तो जगे हुए को जगाने की जरूरत होती है? तो ऑलरेडी आप जग गए हो। भारत का संविधान सहज रूप में, आप मेडिकल स्टूडेंट हो तो आपको जानने के लिए सहज रूप में मैं बता दूं कि भारत का कोई भी कानून, कोई भी आदेश इसकी परिधि से, इसके परव्यू से बाहर नहीं हो सकता। इट हैज टू बी विद इन द पेरिफेरी ऑफ द provisions of the constitutional law, and that too if I talk particularly about the fundamental rights of the constitution. Don't write anything. यदि आधे घंटे मेरे बोलने के बाद आपका दिमाग झंकुरित न हो जाए तो मेरे आने का कोई मतलब ही नहीं है भाई। मेरे पास काम बहुत थे। सैटरडे संडे भी आई एम नॉट फ्री, दो कोर्ट इज नॉट देयर, कोर्ट्स आर क्लोज्ड, but even then we have lots many files in our bungalows, in our offices, in our residences to dispose, to give the order, to pass the order, to write the order. So just be alert. I just want you to awaken, get up and be with me for 20 minutes. I swear, when I will move from this chamber, in this hall, you will say fundamental क्या है, मुझे आज डिस्ट्रिक्ट जज ने बता दिया। आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, सब आप जानते हो। अच्छा आप बताओ, आपको गाना सुनने का अधिकार है कि नहीं? राइट। आपको गाना इतना जोर से सुनने का अधिकार है कि पड़ोसी के कान फट जाए? ये दोनों अधिकार हैं। हाँ, यही भारतीय संविधान में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, यही मौलिक अधिकार है। आप बताइए, पूरे भारत में कोरोना आया तो कोरोना की वैक्सीन सबको दी गई? दिया जाना आवश्यक था? यही मौलिक अधिकार है। अब मैं इंग्लिश के वो टेक्निकल वर्ड्स को बोलूं आपके सामने तो आप में से बहुत सारे लोग उन वर्ड्स में ही फंस जाएंगे, और वो बेटी जो लिख रही है कागज कलम लेकर के, वो लिखने में भी स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देगी। नहीं, क्योंकि लीगल वर्ड्स, लीगल टर्मिनोलॉजीज आर बेस्ड ऑन some other languages, Latin. There are many Latin maxims. We have borrowed this law from many countries. You see, Constitution of India, भारत का संविधान एक ऐसा कानून है और कानूनों की मां है। बिना मां के कोई बच्चा हो सकता है मेडिकल साइंस में? तो वैसे ही कोई भी कानून हो पूरे देश में, किसी के द्वारा बनाया जाए, वो हमारे भारतीय संविधान और भारतीय संविधान का विशेष रूप से, जिस पर आज हमको आपके वीसी साहब ने निर्देश दिया है कि आप मौलिक अधिकार पर बोलेंगे। तो अभी कोविड आया था, कोविड में वैक्सीनेशन हुआ, मालूम है आपको? राज्य ने वैक्सीनेशन कराया, स्टेट ने अपने फंड से। क्यों कराया? क्योंकि एक आर्टिकल है 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फंडामेंटल राइट्स चैप्टर 3 में, उसमें दिया हुआ है कि स्टेट इज अंडर ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड द मेडिकल फैसिलिटीज, द असिस्टेंस टू द पब्लिक, टू द पीपल, टू द सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री। दिस इज व्हाट? दिस इज नथिंग एल्स बट फंडामेंटल राइट। गॉट इट? अब मैं बड़ी बड़ी उसमें बोलूं, परमानेंट कटारा वर्सेस सुप्रीम यूनियन ऑफ इंडिया एक केस था। No need to write. Know the law. कानून को जानो, सिद्धांत को। मैं आपको सिद्धांत दे के जाऊंगा, कानून को याद करने की जरूरत नहीं है। देखो, इनको बजाने का तो अधिकार था, काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे डिस्टर्ब करने का अधिकार इनको, तो दरवाजा हम बंद कर सकते हैं। हम ये तो कर सकते हैं ना, उनका भी राइट है
तो राइट को जानो, साथ ही साथ ड्यूटी को भी जानो। जैसे दिन है और रात ना हो तो हम लोग कितना काम करेंगे, थक जाएंगे ना पढ़ते पढ़ते। बीसी साहब, रजिस्ट्रार साहब इतना पढ़ाएंगे, राव साहब बोले क्लास चलो बच्चों, क्लास चलो बच्चों, क्लास चलो। भाई रात तो मिलना चाहिए आराम करने के लिए, तभी तो दूसरे दिन आप आराम से पढ़ेंगे। उसी तरह संविधान में भी मौलिक अधिकार की बात यदि हम करते हैं तो इस सिक्के की एक ही पहलू है। दिस इज द वन फेस ऑफ द कॉइन, द अदर फेस इज फंडामेंटल ड्यूटीज, and that is equally important. You have right to listen music, but that listening does not allow you to disturb the peace of the neighbor. That is a duty. You have right to speech. This is provided as a fundamental right. You have right to do your business. This is also a fundamental right. You have right to profession. As you are doing, as you are learning, getting this education of medical science, this is also a professional fundamental right given by the Constitution. Everyone has a right to take choice of his own choice, any profession which he likes or she likes. But this doesn't allow you to do what? After getting your degree, यदि आप बोले मैं अबॉर्शन में सहयोग करेंगे डॉक्टर साहब लोग, तो दैट इज अगेंस्ट द लॉ। योर राइट इज देयर टू बी अ डॉक्टर, बट देयर इज अ फंडामेंटल ड्यूटी कास्ट अपॉन यू which stops you, which prohibits you not to do that. That is fundamental duty. And if you learn only, if you read only, if you talk about only fundamental right, that is totally incomplete without knowing your duties also. Right? आपको गाड़ी चलाने का अधिकार है, तो गाड़ी किसी के खेत में से भी ले जाने का अधिकार है। देखो आप तो सब जानते हो, बस मैंने सिद्धांत दे दिया, आप जगे रहेंगी तो सब जान जाएंगी, नहीं जगेंगी क्योंकि जगे हुए को नहीं जगाएगा। ऐसे ही मैं अनुच्छेद की बात करूं, प्रावधानों की संख्या है 21 कहता है। एक आर्टिकल सबसे बड़ा आर्टिकल है, मतलब प्रोविजन है, प्रावधान है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का, फंडामेंटल राइट का, वो है अनुच्छेद 21, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। दरोगा जी सो रहे हैं, सोच रहे हैं साहब वही पढ़ा रहे जो थाना में दिन भर पकड़ करके ठोकते हैं, डंडा से पढ़ते हैं, चल अंदर चल, चोरी करके आया 378, 379 में 3 साल। बात समझिए, आप लोगों के लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इनके लिए क्या है, बोरिंग है। ये बोलेंगे अरे साहब ये तो फिलॉसफी पढ़ा रहे हैं, हम तो प्रैक्टिकल डेली थाने में करते हैं। कोई पकड़ा गया बोलेगा साहब हमको पकड़ लिया आपने, हमको बात करने दीजिए अपने घर वालों से, क्या है ये फंडामेंटल राइट। आपको मालूम है डॉक्टर्स इलाज करते हैं तो डॉक्टर्स के खिलाफ मुकदमा होता है। एक परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989 केस है, उस केस में कह दिया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि राइट टू लाइफ, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो ये मौलिक अधिकार है, इसी के अंतर्गत हमें अच्छे स्वास्थ्य का, उपचार का, स्वस्थ जीवन का भी अधिकार है। और ड्यूटी किस पर दे दिया? राज्य पर। राज्य हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी, इसलिए ये मेडिकल कॉलेज, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये गली गली घूम के वैक्सीन लगाया जा रहा है, क्योंकि राज्य की ड्यूटी है, आपका अधिकार है। अब आपका अधिकार तो है वैक्सीन का, आप कहें साहब वैक्सीन हमको तो 5-6 ठे लगा दो जिससे कोरोना कबो जिंदगी में ना आए, तो ये अधिकार है आपका? नहीं। अब यहां फंडामेंटल ड्यूटी कि एक पॉलिसी बन गई राज्य की कि फर्स्ट डोज इतने एज के लोगों को लगेगा, सेकेंड डोज इतने एज के लोगों को लगेगा, प्रिकॉशनरी डोज
अगर जो इतने एज के हो गए, इतना दिन बीत गया, तो उनको लगेगा। क्राइटेरिया, ड्यूटी इज अपॉन द स्टेट, राइट इज योर्स एंड माइन, राइट इज ऑफ ऑल द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। तो फंडामेंटल राइट बहुत छोटे में 3 मिनट में इसको एक बार फिर से ब्रश करके बता देता हूं। इसका नाम देखिए, मौलिक। मौलिक मीन्स बेसिक, आधारित, बुनियादी। राइट और रॉन्ग, व्हाट इट? तो भाई हम जन्म लिए अगर मनुष्य के रूप में, तो मनुष्य के रूप में क्या मिलना चाहिए? खाना, कपड़ा, मकान, व्यवसाय, नौकरी, रोजगार, अच्छा स्वास्थ्य और शिक्षा। ये सब क्या है? ये मौलिक अधिकार है। कहां दिए हुए हैं? भारतीय संविधान के भाग 3 में। अब जो 50 साल लगा मुझे पढ़ के समझ के कोर्ट में एज जज काम करते हुए, मैंने 3 मिनट में आपको बताया। समझ में आया? ये है मौलिक अधिकार। अब इसको मैं आपको बांटना शुरू कर दूं। We the people of India having solemnly resolved to constitute India India socialist sovereign democratic republic, all these all बकवास। सिद्धांत आप पकड़ लो, बेटियां सिद्धांत पकड़ ले और बढ़िया से डॉक्टर बने और इलाज करे और बोले भाई तुम्हारा इलाज कराने का अधिकार है, लेकिन इलाज कराने में तुम ये नहीं कहोगे कि वैक्सीन हमको 5 लगाए दो। वैक्सीन वही लगेगा जो राज्य ने नियम बनाया है। राइट? कोई प्रश्न नहीं आपके पास है? मैं तो सिद्धांत बता रहा हूं। अधिकारों के बारे में मेरे पास तो इतना है कि बोलते बोलते शाम हो जाएगी। आप लोग समझ कितना पाएंगे, मुझे डाउट हो रहा है। तो अगर कोई आपको जेन्युइन प्रॉब्लम हो, आपके फैमिली में, आपके दोस्तों के साथ, आपके आसपास पड़ोस में, या मीडिया आजकल बहुत सजग है। आजकल सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग इतना चलता है, कुछ लोग यहां बैठे इतने स्मार्ट है कि वो अपने पैर पे रखे मोबाइल टक 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 कर रहे हैं और सोच रहे हैं जज साहब कहां समझेंगे कि वहां टक 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 चल रहा है। लेकिन 3-4 लोगों को मैं गौर कर लिया हूं, क्योंकि आप ही जैसे कचहरी में लोग भीड़ आती है, मैं उनको देखना रहता है। तो आप देखो वो लोग जो स्मार्ट है, जो ऐसा कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि भाई जज्बा तो है, मतलब पकड़ लिया। तो ये रहा मौलिक अधिकार का वो सारांश, जो मैंने सोचा आपको बस यूं ही होम्योपैथी की गोली की तरह आपसे बातें करके दिला दूं। मौलिक अधिकार मूल रूप से समझिए, मनुष्य होने के नाते मैंने कहा शिक्षा वो इसमें दिया हुआ। इसीलिए भारत सरकार, प्रदेश सरकार योजनाएं बनाई है, वो पढ़ाती है फ्री, निःशुल्क। कॉलेजेस हैं, स्कूल है, बेसिक स्कूल, प्राइमरी स्कूल, टीचर्स अपॉइंट होते हैं, उनको तनख्वाह सरकार से मिलती है, बच्चे जाते हैं पढ़ते हैं, उनको कोई फीस देना नहीं होता है। राइट टू हेल्थ है, फंडामेंटल राइट है। आप देखिए वैक्सीन, हमने तुरंत उसको अपने कनेक्ट किया वर्तमान रेलिवेंट। देखिए अभी चल भी रहा है कोरोना, कहीं आया कहीं नहीं आया, चाइना फिर परेशान, जापान फिर परेशान। अब भारत में ऋषि मुनियों का धरती है, महाराज जी लोगों की कृपा है, भारत एकदम ठीक चलता रहेगा, बशर्ते आप लोग सिद्धांत को पकड़ के चलिए। तो ये हो गया स्वास्थ्य का। उसी तरह से आपको गरीबों को जमीन दी जाती है, मालूम है, जो पात्र नहीं है, अनाज दिया जाता है, बीपीएल कार्ड, एजुकेशन दिया जाता है, प्रोफेशन में रोजगार कराया जाता है, बहुत सारी प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, वो निःशुल्क ट्रेनिंग दिया जाता है, उनको नौकरी दी जाती है। ये सब कुछ नहीं है माय डियर्स, यही है वो भारी भरकम शब्द मौलिक अधिकार। अब आपको कुछ पूछना है तो बताइए, कानून की कोई भी परेशानी हो, बेटियों को हो, बच्चों को हो, या फैकल्टी के किसी को हो, तो पूछ सकते हैं। अगला 5 मिनट में उसी के लिए छोड़ता हूं। यस, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? अच्छा, ये सहयोग करने वाले हैं पूछने वाले। अरे आप नौजवान आदमी, वैसे ही बोलिए ना। अरे बोलिए। हाँ,
सोशल मीडिया पर हम देखते हैं दोस्तों के साथ देख सकते हैं, जब वो बाइक से कहीं जाते हैं नहीं रहता है या ट्रिपिंग किए रहते हैं, पुलिस वाले पहले चाबी निकाल दूसरा पीटना शुरू करते हैं फाइन की जगह। ये तो क्या शुभ नाम है आपका? वैभव, सिट डाउन प्लीज। बहुत बढ़िया प्रश्न इन्होंने किया। हाँ, मैं उनको भी बता रहा हूं, उनको भी बताना मेरा ही काम है, वो तो मेरे सहयोगी हैं, मेरे परिवार के हैं। मैं चलता हूं तो साथ में रहते हैं, क्या करें। अच्छा देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो पूरा सिस्टम है उसको समझ लीजिए। एक व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ, उसके किसी अधिकार का जो मैंने बताया, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, जीवन, मकान, के सारे जो मौलिक अधिकार हैं, इनकी पूर्ति नहीं होती है और ये अधिकार आपके दिए गए हैं, शिक्षा का अधिकार यदि किसी को नहीं मिला तो क्या उपचार है? आप उस अधिकार को मांगने के लिए जाएंगे, ये भी एक अधिकार है मौलिक। यदि आपको जिन अधिकारों के बारे में मैंने बताया, फला 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 आपके अधिकार हैं और वो अधिकार नहीं मिल रहे हैं, तो उन अधिकार को लेने के लिए एक मौलिक अधिकार और दिया हुआ है, उसके द्वारा आप एक याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं। अब जैसे कि वैभव जी ने बताया, भाई फंडामेंटल राइट उनका तो नहीं है मारने का और आपका पिटवाने का भी नहीं है, लेकिन आपको 3 लोगों को चलने का अधिकार था। मैंने पहले ही कहा, सिक्के की एक पहलू है ये मौलिक अधिकार, सिक्के की दूसरी पहलू क्या है? कर्तव्य। आपका कर्तव्य है कि ट्रिपलिंग न चले। अब चोर चोरी करे, अब बोले मुझे पीट दिया, तो तुमने तो चोरी कर लिया, चोरी करते समय पिटा गया, तुम तो गलत काम कर रहे थे, तो ट्रिपलिंग, खुद ही बोले वैभव कि हम ट्रिपलिंग चल रहे हैं तो पिट जाते हैं। अब ये लड़का होशियारी किया होता, डॉक्टर की जगह वकील होता, तो कहता कि हम 2 लोग जा रहे थे, साहब पीट दिए, तब तो उनकी गलती थी। अब बोलने में हम जज हैं, पकड़ लिए इनकी बात। ये खुद ही इलीगल काम किए, ट्रिपलिंग चलना मना है, मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से अगेंस्ट द लॉ है, तो इनको अब दरोगा जी पीटे तो कौन सा गुनाह? चोर जो है चोरी करने जाए और पिट जाए तो कोई गुनाह है? हाँ, गुनाह नहीं है, लेकिन हमारा कानून उनको अधिकार नहीं देता है। वास्तविकता यही है, ये व्यवहारिकता है जो मैंने बताया, ये वास्तविकता है जो कानून कहता है कि दरोगा जी को he has no right to scold, he has no right to beat, he has no right to take a stick and thrash you, he has no right, but he has every right to challan, he has every right to arrest you, he has every right to take you to the place you before the concerned magistrate and may ask you to ask for bail. He can put you in jail. That is his right, that is his work, and very rightly if he does so, that is very correct. तो मैंने पहले ही कहा कि अधिकार की बात हम करते जरूर हैं, कर्तव्य की बात को हम सोचते नहीं है। गाना सुनिए आप, लेकिन 2 बजे रात को नहीं। पटाखा फोड़िए आप, लेकिन कुछ डेसिबल के ऊपर नहीं, लिमिटेशंस है। अब पटाखा की जगह एटम बम थोड़ी फोड़ेंगे। पटाखा रात में 2 बजे आप उस पड़ोसी को परेशान करने की उसकी खिड़की में थोड़ी फोड़ेंगे कि बूढ़ा जो है छोड़ के घर भाग जाए, आप कब्जा कर ले। बहुत सी बातें हैं। आपको स्मार्ट बनने का अधिकार है, यह हमारा फंडामेंटल राइट है कि मैं पढ़ूं, शिक्षित हूं, अच्छे से ड्रेसअप हो जाऊं, स्मार्ट दिखूं, लेकिन आपको स्मार्ट बनने का अधिकार यह नहीं देता है कि आप अपने स्मार्टनेस में किसी को क्षति पहुंचा दें। अब दोनों हाथ छोड़ करके शाहरुख खान बन जाइए या अमिताभ बच्चन डॉन का बन जाइए और रास्ते में बाइक चलाइए हाथ छोड़ के और बोलिए मेरा मौलिक अधिकार, मैं जैसे चाहूं जीऊं। नहीं, वहां फिर आएंगे यही 2 डंडा मारेंगे, फिर वैभव जी जैसे लोग कहेंगे साहब ये तो गलत है।
Got it? Right? Anyway, today time is very short. I would really be very happy to. Yes, please. सर्जरी का बिल्कुल सही है। सर्जरी का अगर कर रहे हैं सर्जरी का कोर्स तो सर्जरी का अधिकार है, तो कोई मना तो करता नहीं आपको। बेटा शल्य चिकित्सा तो जहां तक मैं जानता हूं आयुर्वेद से है ना, ये शल्य चिकित्सा तो है, तो शल्य चिकित्सा का तो वही हुआ, सर्जरी हुआ है, तो आप इसी हिसाब से मिलेगा। ये प्रॉब्लम लीगल नहीं है, ये प्रॉब्लम इंटरनल है, ये सॉल्व कर देंगे। कानून का भाई इससे कोई लेना देना नहीं, ये आपके संस्था का कुछ नियम है, नियम से आप इस हिसाब से मिलिए। हमारे लर्नेड रजिस्ट्रार साहब बैठे हैं, इनसे मिलिए। नहीं नहीं, कानून का कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप सर्जरी का कोर्स किए हैं तो सर्जन है आप। भाई मैंने जज के एग्जाम पास किया और मैं जज हूं, तो अपना काम करता हूं, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई। अब ये मौलिक अधिकार और कानूनी रूप से किस पहलू पे आप बात कर रहे थे, मैं समझ नहीं पाया। कि आपको सर्जरी का अधिकार है, बिल्कुल है, तो करिए, वो राइट टू प्रोफेशन हो गया। मैंने पहले ही कहा आप डॉक्टर्स बनने जा रहे हैं, डॉक्टर्स है, फर्स्ट ईयर कैसा है, तो बस डॉक्टर्स है, आपके चेहरे से दिख रहा है। सेकंड ईयर आते आते थोड़े से और मैच्योर हो जाएंगे आप, और फाइनल अपना कंप्लीट होते होते पूरे आप डॉक्टर लगने लगेंगे, राइट? हाँ, और कुछ एनी क्वेश्चंस? आई विल टेक 2 more questions. Yes, please. शायद हमारे मित्र की बात पहुंच गई है, और अभी हाल फिलहाल में एक निर्णय ले लिया गया है कि सीएम साहब और पीएम साहब का काफिला जब चलेगा तो बंद नहीं किए जाएंगे सड़क। अच्छी बात है, आपकी बात पहुंच गई है, संशोधन हो गया है। मैंने पहले ही कहा कि आपको जगने की जरूरत है। व्हाट मिस्टर त्रिपाठी हैज सेड, जगना है सिर्फ। इफ यू आर अवेयर, all the rights are to you. You will get your rights. You'll enjoy your rights. These rights are for you. These rights are for all the citizens of this country. Some rights are there for the non-citizens also. That is true. But for your rights and to avail the benefit of your rights, you have to be aware. Unless you are aware, you won't be able to get any right. भाई हम ऐसे जेब में पैसा रख के सो जाए, जेब में पैसा रख के सो जाए बिंदास, और कोई आए जेब में हाथ डाले निकाल ले जाए, हम बोलबे न करे कुछ, तो क्या मतलब है? तो पुलिस वाले कहाँ आएंगे, कहेंगे भैया पैसा अपना संभाल ठीक से। आपको अपने पैसे की रक्षा खुद करनी पड़ेगी। आपको अपने मौलिक अधिकार जो आपको संविधान दे रहा है, जो इस देश में जन्म लेने के नाते, मनुष्य के रूप में जन्म लेने के नाते आपका अधिकार है, वह अधिकार लेने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। उसके लिए मैंने बताया उपचार है। अगर ये अधिकार नहीं मिल रहे हैं तो इस अधिकार को पाने के लिए लीगल आपके पास उपचार है। आप संबंधित न्यायालय में जाए, अपनी पिटीशन दे, आदेश कराए और अधिकार पाए। इन्हीं शब्दों के साथ, हाँ जी, न्याय पाना हमारा मौलिक अधिकार है। बिल्कुल सही। मान लीजिए कि हम एमए में एडमिशन कराना, और एडमिशन में कोई कारण और हम गए कोर्ट के पास, एमए के फर्स्ट ईयर पे एडमिशन का निर्णय 4 साल बाद जब आता है, एडमिशन का क्या? बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत बढ़िया। देखिए, ये मैं उम्मीद कर रहा था कि कोई आप में से कहता, लेकिन आई एम रियली थैंकफुल टू आवर रजिस्ट्रार साहब, इन्होंने कितनी अच्छी बात कही। क्या आप लोग इससे सहमत नहीं है? हम जिस अधिकार के लिए हमने कहा न्यायालय में जाइए, न्यायालय में जाते हैं, विलंबित होता है, न्याय मिलने होता है ना, सब जान रहे थे ना आप लोग, क्यों नहीं पूछे? अच्छा बताओ, आप क्या कितने अध्यापक हैं? कितने अध्यापक होंगे साहब, प्रिंसिपल साहब?
8। कितने होने चाहिए? 80? फर्स्ट ईयर में इतना है नहीं, पूरे में। टोटल फाइनल ईयर हाँ 45। 45। आपको मालूम है हमारे जनपद में 100 कुछ इंस्पेक्टर्स हैं। 100 कुछ। दरोगा जी बैठे हो, मैंने आंकड़ा एडीजी से लिया। और होने चाहिए कितने? 360, 362। जो स्वीकृत पद है वो 362 है और है 100 कुछ। तो क्या वो सही से काम कर पाएंगे? यही तो आपका प्रश्न है, इसका उत्तर है 1950 में भारत की न्यायपालिका में जितने न्यायाधीश का पद सृजित हुआ था, जब हमारी देश आजादी के उसमें आए, उस समय से लेकर के जनसंख्या तो बढ़ गई 140 करोड़, मुकदमे बढ़ गए 40 लाख, हर कोर्ट में बढ़ गया 40 लाख, और जज बढ़ गए 4, वो भी 3 खाली कोर्ट है, 1 आदमी है। कैसे होगा निस्तारण? ये एक कारण है। इन्होंने पूछा, ये विषयांतरित हो रहे हैं हम लोग, किसी और दिन इसकी चर्चा करते, लेकिन भागना मेरा काम नहीं है। मैं तो आया हूं आपको रूबरू कराने। आप देश के नागरिक हो, आप देश के धरोहर हो, आप भी जानो देश की व्यवस्था क्या है। ऐसा नहीं न्यायालय के परिधि में, 4 दीवारी में हम बैठे हैं तो सिर्फ हम ही जाने, आप भी जान सकते हो, यह भी आपका अधिकार है। तो 3 बातें। एक तो जितना न्यायाधीश होना चाहिए, जैसे जितने अध्यापक होने चाहिए पूरी फैकल्टी को चलाने के लिए, ठीक से उतने नहीं है। जितने दरोगा होने चाहिए उतने पुलिस वाले हैं क्या यहां? नहीं है। देखिए, आपके जनपद की बात कर रहा हूं, पूरे प्रदेश की बात मैं नहीं कर सकता, प्रदेश को मैं नहीं देखता। जनपद के एक शीर्ष न्यायपालिका के पद पर होने के नाते उसकी पूरी जानकारी मैं रखता हूं। ऐसी पूरी प्रदेश की स्थिति है, इसी प्रकार पूरे देश की स्थिति है। तो न्याय जो हमें संविधान ही कहता है कि 3 महीने में इसका निर्णय हो जाना चाहिए, वो 3 साल लगता है, कभी कभी 30 साल भी लग जाता है। दूसरा कारण, एक वकील नाम के प्राणी होते हैं। यहां तो कोई नहीं है, नहीं, डॉक्टर के बीच में वकील तो होंगे नहीं। वकील नाम के एक प्राणी होते हैं, व्यक्ति होते हैं। वकील तो जानते होंगे आप लोग, एडवोकेट। हो सकता है आप लोग घर में हो लोग, मैं उनको बुरा नहीं कह रहा हूं। उनका काम क्या होता है भाई? उनका वो पेशा होता है। अगर वो 3 साल चलने वाले मुकदमे को 3 दिनों में निपटारे कर देंगे तो उनका सोच लीजिए कि 2 साल 11 महीने 27 दिन क्या करेंगे वो ये कहते हैं हमसे। तो उनको कहना होता है कि साहब अगर 3 दिन का मुकदमा हम 3 साल नहीं चलाएंगे तो हम खाएंगे क्या? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। और मैं कोई किताबी बातें नहीं कर रहा हूं, मैं जो करता हूं दिन भर व्यवहार की बात, वो व्यवहार की बात आपके सामने प्रैक्टिकल जो है वो रखना। हड़ताल कर देंगे, आज बहस नहीं करेंगे, आज बीमार पड़ जाएंगे, आज कंडोलेंस हो जाएगा, नहीं कुछ तो जज साहब आज अच्छे नहीं लग रहे हैं, हड़ताल कर देंगे जज साहब के खिलाफ। विलंबित होता है, यह भी अधिकार है। Mr. Rao has said very rightly that this is also a right of every individual of this country, but we are not getting it. The causes are, the reasons are, as I said, judges are less in number, courts are less in number, cases are piling up day by day, increasing. Advocates are not cooperating, judges are not in number. So these all are reasons. Anyway, we'll talk sometime later on. बहुत बड़ा विषय है. Thank you for raising this topic. Yes, the last question of the day. DG Locker. हाँ. Yes, I know that. Yes. हाँ.
valid नहीं है, खाना नहीं है। तो आपसे इससे जानना चाहेंगे तो बीजी बात कितने डाउट किया है उसका नहीं, बिल्कुल वैलिड है, तो एज पर लॉ है। और अभी भी जानिए, देखिए आप, अच्छा कितने लोग बाहर जाते हैं, आप कैश की जगह दिखा करके काम चला लेते हैं, होता है कि नहीं? वो सब वैलिड है। आप कितने लोग फ्लाइट से गए हैं, ट्रेन में यात्रा करते हैं, या फिजिकल टिकट रखते हैं या मोबाइल में दिखाते काम चल जाता है? तो भाई सब तो चल रहा है। डिजिटाइजेशन इज ए लॉ नाउ। डिजी लॉ, इट्स अ वेरी वैलिड लॉ एंड ए लीगल थिंग। अब आप दरोगा जी, हो सकता है भाई आपका पुराना रंजिश हो उस दरोगा से, या आप अच्छे नहीं लगे हो, कोई व्यक्तिगत बात होगी। हम तो बात जनरल कानून की कर रहे हैं, हम बात उसकी नहीं कर रहे हैं कि फलनवा इस जात का है तो फलनवा को मारो, ये हमारा पड़ोसी है इससे हमको रार है तो इसको पीटो। वो सब बातें व्यक्तिगत हो गई, कानून उसकी बात नहीं करता। वह छोटे और संकीर्ण सोच की बात है। आपको दरोगा जी ने परेशान किया, अब आपको दिखाइए हमको कि वास्तव में वैलिड वो था कि नहीं था, देखे फिर आप एक जान लो। हर चीज का मैंने कहा, फिर शुरू में ही कुछ भी जानने के पहले आप जग जाओ। आप जगे नहीं हो, टीवी में आ रहा है, रेडियो में आ रहा है, सोशल ऐप पे आ रहा है, मीडिया में आ रहा है, पेपर में है, हर जगह आप सुन रहे हो। अगर आपके साथ अन्याय हो तो ये टोल फ्री नंबर है, संपर्क करिए। 112 है, आप बुला लीजिए। कोई दिक्कत हो, शिकायत का टोल फ्री नंबर है, आपने देखा नहीं, देखे हैं, आप उसमें शिकायत कर दीजिए। कंज्यूमर है आप, आपके साथ दुकान में धांधली हो गई, लेकिन सबके लिए आपको जगना पड़ेगा माय डियर्स, वरना यह हिंदुस्तान है, यहां खुली आंख में भी सोते बहुत लोग हैं। इस बात को समझिएगा, यहां खुली आंख में भी सोते हुए हमने लोगों को देखा है। इसलिए जग जाइए, जगने का मतलब सजग हो जाइए। सजग होंगे, आपके आसपास बहुत सी जानकारियां मिल रही हैं, आप सजग होंगे तो अपने अधिकार को जानेंगे, अधिकार को जानेंगे तो उसे ले सकेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। अरे हम बहुत झेला दिए होंगे, आपको बताएंगे, हर जगह हो तो आराम से सीखें। Thank you so much, sir, for enlightening us. Now, moving forward with the session, I would like to introduce respected Dr. Karuna Tiwari ma'am. Ma'am is a well-known naturopathy practitioner and a well-known yoga practitioner. We are very honored for your presence over here, ma'am. This educational session on stress relieving technique will surely educate us. I kindly welcome you, ma'am, to come up on the stage and enlighten us. Thanks. अच्छा लग रहा है मुस्कुराते हुए चेहरे देख के है ना, क्योंकि यही हमारा मूल स्वभाव है। और हमें बोलना है तनाव प्रबंधन के बारे में। तनाव क्या है, कोई बताएगा मुझे? एनीबडी? व्हाट इज स्ट्रेस? कोई नहीं। जबकि आज बच्चा बच्चा तनाव में है। तनाव है क्या फिर? थोड़ा बहुत कुछ भी क्लू? ओवर थिंकिंग, यस। कोई? मेंटल हैरेसमेंट, वेरी गुड। और मोर डिजायर, वेरी गुड। और वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये सब चीजें क्यों? मोर डिजायर्स, ओवर थिंकिंग, ये सब क्यों हो रही है? डिजायर्स क्यों हैं? वो है किस लिए? कंपटीशन है तो किस लिए है? टू अचीव समथिंग। किस लिए? अचीव क्यों करना है?
सेटिस्फैक्शन, वेरी गुड। सेटिस्फैक्शन होगा तो क्या होगा? हाँ, मोर डिजायर्स होंगे तो क्या होगा उससे? कम लगेगी, वेरी गुड। लेकिन चीजें चाहिए क्यों? अरे बाबा, खुश रहने के लिए, जो हमारा मूल स्वभाव है। जितना सारा कुछ ये है तामझाम सिर्फ खुश रहने के लिए। आप पढ़ाई कर रहे हो किस लिए? इनर हैप्पीनेस, ठीक है। और यही पढ़ाई के लिए आप अभी इनर हैप्पीनेस के लिए आप पढ़ने आए हैं, लेकिन पढ़ते 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 जब आगे बढ़ेंगे, ओवरबर्डेंड होंगे, तो फिर क्या होगा? स्ट्रेस में आएंगे। तो क्या होगा? अपने मूल स्वभाव से आप हट जाएंगे। मूल स्वभाव है खुश रहना। जब हम अपने मूल स्वभाव से हट जाते हैं, उसी को तनाव बोलते हैं, ठीक है। तो तनाव में हम आते हैं तो क्या होता है, बताइए? वेरी गुड, आगे बोलते जाओ, आप सब लोग बस बोलो। इन्वॉल्वमेंट चाहिए मुझे, वेरी गुड। और इन सब के परिणाम स्वरूप क्या होता है? हेल्थ कैसे खराब होती है? आप सब डॉक्टर्स हैं, देखो बताऊं मैं कि जब हम तनाव लेते हैं ना और अपने मूल स्वभाव से हट जाते हैं, तो हमारे बॉडी में कुछ बैड हार्मोन्स रिलीज होते हैं। सुना है इसे, जिसको टॉक्सिन बोलते हैं, विषाक्त पदार्थ। और जब वो टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं बॉडी के अंदर, लेकिन उन्हें बाहर रिलीज करने का तरीका हमें नहीं पता है। बाहर से कैसे सफाई रखनी है ये तो हमें सबने बताया है। अगर धूल चढ़ गई है, गर्द हो गई है, तो नहा लो घर जाके, बाल गंदे हो गए हैं धुल लो, अच्छे अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन लो, कपड़े धुल लो। बट हमारे मन के अंदर जो गंदगी हो रही है, मन के अंदर गंदगी का मतलब कि जो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में निकल रहे हैं, ये आउटर स्ट्रेस और एडवर्स सिचुएशन, ओवर थिंकिंग, इन सब की वजह से जो हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं, उनको बाहर निकालने का तरीका हमें कभी किसी सिलेबस में, कभी किसी क्लास में नहीं बताया गया है। किसी को पता है? नहीं पता है। और जब वो टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो वो बॉडी के किसी पार्ट में जाके एक्यूमुलेट होते हैं, राइट? जब वो बॉडी के किसी किसी पार्ट में जाके एक्यूमुलेट होते हैं, तो वही बीमारी का कारण बनते हैं। जैसे लोगों को गठिया हुआ रहता है, लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, ये सब कुछ टॉक्सिन्स के कारण होते हैं, जो कि बाय प्रोडक्ट है स्ट्रेस का, ठीक है। तो इन सब के बाय प्रोडक्ट का जो नतीजा है कि वो हमारी बॉडी में इतने सारे टॉक्सिन्स हो जाते हैं, इतने सारे टॉक्सिन्स कि वो किसी न किसी बीमारी के रूप में निकलते रहते हैं। तो हमें उसी को रिलीज करने का तरीका सीखना है। और तनाव या फिर किसी भी तरह का बर्डन कह लें या स्ट्रेस कह लें, ये सब जो है वो किस लिए होता है? हमारे इमोशंस के कारण, क्योंकि हम हर बातों से इमोशनली अटैच होते हैं ना। तो कभी नोटिस किया है कि हमारे इमोशंस में जैसे कभी गुस्सा आता है तो हमारी सांसों की गति कैसे चलती है? बहुत तेज हो जाती है, ठीक। कभी किसी बात से हमें डर लगे, एग्जाम फियर हुआ या किसी भी तरह का कोई फियर हुआ, तो हमारे सांसों की गति कैसे चलती है? वेरी गुड। और जब कभी बहुत अच्छे मूड में है, म्यूजिक सुन रहे हैं, बढ़िया कुछ मौसम और ठंडा हो गया, अच्छी कॉफी मिल जाए, थोड़े से समोसे वगैरह मिल जाए, इसको जब हम खा करके घर में एकदम रिलैक्स करते हैं, तो सांसें कैसे चलती हैं हमारी? नॉर्मल, वेरी गुड। और ऐसे में क्या करना है कि जब हमारे इमोशंस बदलने से सांसों की गति बदल जाती है, तो कोई अगर ऐसी टेक्निक हो कि सांसों की गति को नियंत्रित करके हम अपनी भावनाओं को नियंत्रण कर लें, कोई ना कोई ऐसी टेक्निक तो होनी चाहिए। तो देखो एक बात है,
कि हमारे जो भावनाएं हैं वो हमारी सांसों से जुड़ी हुई हैं, ठीक। तो सांसों की गति को जब हम नियंत्रित करके अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन आज के समय में वैज्ञानिक रूप से ये प्रूव हो चुका है कि वैज्ञानिकों ने ये साबित कर दिया है कि हमारे शरीर की 90% इंटरनल क्लींजिंग जो होती है वो सांसों के द्वारा होती है, लेकिन हम में से बहुत से लोग अपनी लंग्स कैपेसिटी का मात्र 30% ही इस्तेमाल करते हैं। तो वो स्ट्रेस रिलीज कैसे होगा? सांसों की यानी कि लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा के। और लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी कैसे? कुछ सांसों की प्रक्रिया करके, जैसे हम अनुलोम विलोम करते हैं, कुछ प्राणायाम करते हैं, इससे हम अपनी सांसों की गति को कंट्रोल कर सकते हैं। और सांसों की गति जब हमारे कंट्रोल में आ जाएगी तो जाहिर सी बात है हमारी भावनाएं हमारे नियंत्रण में आ जाएंगी। तो जीना तो है इस दुनिया में, चाहे हंस के रो चाहे रो के जियो, सॉरी है, रो के जियोगे तो हर परिस्थिति बोझिल हो जाएगी, समस्या और भारी नजर आने लगेगी। लेकिन जब हंस के जियोगे तो क्या होगा? समस्या वाली जो परिस्थितियां हैं वो बहुत शॉर्ट हो जाएंगी, और मन जब शांत रहेगा तो आपको उन समस्याओं का समाधान भी सूझेगा ना। तो जरूरत है तनाव प्रबंधन के लिए, सबसे बड़ी चीज है अपने मन को कंट्रोल करना। मन कंट्रोल होगा हमारी भावनाओं के कंट्रोल होने से, भावनाएं कंट्रोल होंगी हमारी सांसों के कंट्रोल में आने से। तो हम थोड़ा सा, आज आप दिन भर थके होंगे, थोड़ा सा आपको हम शांत करें। एक ट्रेलर छोटा सा, हम 5-7 मिनट का एक मेडिटेशन करेंगे, ठीक है? जो हर एकदम रिलैक्स होके सभी लोग बैठ जाएं, आप सभी लोग, एवरीबॉडी। अच्छा, इसके पहले हम थोड़ी सी एक्टिविटी कर लेते हैं, ठीक है? दोनों हाथों को खूब खूब छाड़े, खूब छाड़े, खूब। गर्दन वर्दन भी हिला सकते हैं थोड़ा थोड़ा। चश्मा चाहे तो उतार दें, इसमें देखने की जरूरत नहीं है, बस सुनना है। चश्मा उतार देंगे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा, है? बढ़िया से, और लंबी गहरी सांस लेते रहें। एंड रिलैक्स, शांत, आंखें बंद कर लें, आंखें बंद, पूरी तरह से विश्राम। शरीर को ढीला छोड़ दे, एकदम ढीला छोड़ दे, जैसे भी शांत बैठ सकते हैं। एकदम विश्राम की अवस्था में बैठना है, कोई स्ट्रेस बॉडी को नहीं, माथे पे भी कोई स्ट्रेस नहीं, बिल्कुल सहज भाव में जैसे सोते हैं वैसे रिलैक्स हो जाए बिल्कुल। लंबी गहरी सामान्य सांस लें, मुस्कुराते हुए धीरे धीरे छोड़ दें। चेहरे पे मुस्कान जरूर हो, खूब लंबी वाली। एक और लंबी गहरी सामान्य श्वास, मुस्कुराते मुस्कुराते जाने दें। लंबी गहरी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। आंख खोलने की जरूरत नहीं है, आपको कोई नहीं देख रहा। लंबी गहरी सांस, धीरे धीरे छोड़ते रहें। एक और लंबी गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ते रहें। अपने आसपास के होने वाली आवाजों को बहुत ध्यान से सुने। पंखे की आवाज, गाड़ियों के चलने की आवाज, ध्यान से सुने। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ते रहें। लंबी गहरी सांस लें,
और छोड़ दें। एक और लंबी गहरी सांस, उसे भी छोड़ते रहें। सारा ध्यान अपनी सांसों पर। एक भी सांस आपकी इजाजत के बगैर ना अंदर जा सके ना बाहर आ सके। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। अपने आसपास की चीजों के प्रति सजग हो जाएं। अपने मन के प्रति सजग हो जाएं। देखें मन में क्या हो रहा है। अपनी भावनाओं के प्रति सजग हो जाएं। एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। सांसों की गति पे पूरा ध्यान रखें। अपना ध्यान नासिका के अग्रभाग पर रखें। एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। अपना ध्यान अपने पैरों पर ले जाएं। पैरों को हिलाना नहीं है, बस ध्यान रखें। दोनों पैर, दोनों घुटने, थाइज, कमर। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। अपना ध्यान अपने पेट पर ले जाएं। नाभि के पोर्शन पे अपना ध्यान रखें। अपना ध्यान अपने सीने पर ले जाएं। लंबी गहरी सामान्य श्वास लें और छोड़ते रहें। दोनों कंधों पर अपना ध्यान रखें। दायां हाथ, बायां हाथ। एक और श्वास लें और धीरे धीरे छोड़ दें। अपना ध्यान अपनी गर्दन पे रखें। अपना चेहरा, दोनों आंखें, माथा, लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। विश्राम करें। लंबी गहरी सांस लेते रहें और छोड़ते रहें और पूरी तरह विश्राम करें। पूरा विश्राम, पूरा विश्राम।
लंबी गहरी सांसें लेते रहें और छोड़ते रहें। पूरी तरह विश्राम करें। सारा ध्यान अपनी सांसों पर रखें। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखें। पूरा विश्राम करें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। एक और लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। धीरे धीरे अपने हाथों पैरों को हिला लें। बहुत धीरे धीरे हाथों की उंगलियों को और पैरों को हिलाएं। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। वातावरण के प्रति सजग होते हुए एक और लंबी गहरी सामान्य श्वास लें और छोड़ें। अपना समय लेते हुए जब भी प्रसन्नता का अनुभव करें, धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। How you feeling? Peace? है? तनाव कम करने का सबसे बड़ा तरीका यही है। कुछ योग करें, कुछ ध्यान करें, थोड़ा वक्त जरूर अपने लिए निकालें, क्योंकि जब आप स्वस्थ हैं तभी जो आप चाहते हैं वो कर पाएंगे ना। पूरे साल पूरी मेहनत करो और ऐन मौके पे तबीयत खराब हो जाए, एग्जाम ना दे पाओ तो क्या होगा? सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। अपने लिए रोज थोड़ा वक्त निकालें, थोड़ा योग करें, थोड़ा प्राणायाम करें, थोड़ा ध्यान करें, अपने मन को शांत रखें, तनाव को अपने आप से दूर रखें। और तनाव को एक सबसे अच्छा तरीका है दूर करने का कि किसी भी परिस्थिति में हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, चाहे कुछ भी हो जाए। पुलिस वाले ने 2 डंडा मार दिया तब भी हंसते रहो। बट ये सोच लो कि अगली बार ट्रिपलिंग नहीं करनी है, हेलमेट लगा के जाना है। वो हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है।
है। परिस्थिति कोई भी हो, हंसते रहो, ठहाके लगाते रहो, तनाव अपने आप दूर रहेगा। बस इतना ही। थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am, for enlightening us. Now, I request our respected Vice Chancellor, sir, Major General Dr. Atul Kumar Vajpayee, sir, to come on stage for vote of thanks. आदरणीय डॉक्टर करुणा तिवारी मैडम, डॉक्टर तेज प्रताप तिवारी सर, फैकल्टी और मेरे साथियों, आज ये हमारे ख्याल से पहला ओकेजन होगा, पहला अवसर है कि जहां पर दो बहुत अच्छे वक्ता पति पत्नी के रूप में आए। लेकिन इनके साथ में एक बहुत बड़ा विरोधाभास था। जहां सर ने कहा जाग जाओ, वही मैडम ने कहा सो जाओ। अब इसमें मैं क्या बोलूं कि मौका कहता है या समाज कहता है, जागना अधिकारों के प्रति है और सोना ये बाहरी अब वो पहलू है ना। तो धन्यवाद सर, आप आए, आपने इतने अच्छे शब्दों में हमारे बच्चों को अपने अधिकारों के बारे में और उनका कैसा एप्लीकेशन कैसे होती है दुनिया में, उसके बारे में बताया। आप लोग हमेशा, यदि देखिए क्या होता है कि स्ट्रेस कब होता है, मान लो शेर आ गया आपके सामने, ठीक है, शेर आ गया आपके सामने और आपको मालूम ही नहीं क्या है, तो आप घबरा जाओगे, वही शेर के हाथ पर जोड़ने लगोगे, शेर खा जाएगा। लेकिन यदि आपको मालूम है कि साहब शेर आ गया तो हमें ये रिएक्शन करना है, पेड़ पर चढ़ जाना है, उसको पेड़ पर चढ़ना नहीं आता, ठीक है, हमको सीटी बजानी है जोर से, जैसे शेर आवाज सुनते सब घबरा जाते हैं। बीड़ी सिगरेट पीना हमको, शेर को पसंद नहीं है कोई उसके सामने स्मोकिंग करे, मतलब कोई स्मेल, एबनॉर्मल स्मेल पसंद नहीं होती। यदि आपको पता है तो आप स्ट्रेस आपका कम होगा, आप समझे। तो आज सर ने बताया है कि यदि आपके साथ कोई अन्याय हो रहा है, आपको जीवन का अधिकार और शेर छीनने जा रहा है, तो आप एक एप्लीकेशन दे सकते हो कि हमारे पास में, तो एप्लीकेशन का रिजल्ट कब होगा क्या होगा, लेकिन वो हमको पता नहीं, कौन सही है कौन गलत वो भी नहीं मालूम। लेकिन आपका जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस वो है जो आपने अनफोर्सिन कंडीशन के लिए, सामने कुछ नहीं है और उसको आप सोच रहे हो कि साहब बहुत खतरनाक आदमी है, रात को हमला कर सकते हैं आपके ऊपर, जबरदस्ती का भूत बनाए बैठे हो, तो उस चीज का सर ने जो बहुत छोटे शब्द बचाए कि आपके पीछे सरकार है, पूरी न्यायपालिका है। यदि आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है तो आपको मिलने का एक अवसर है। इतना सोचने मात्र से कि आपके पीछे कोई खड़ा हुआ है, जैसे हम सब लोग कहते हैं कि आपको डर किस बात का, जब आपके पीछे भगवान है, तो आपके पीछे जब न्यायपालिका खड़ी हुई है, पूरा सोसाइटी खड़ा हुआ है, देश का संविधान खड़ा हुआ है, तो डर किस बात का। तो आज मैडम ने जिस तरीके से हम लोग को बताया कि कैसे स्ट्रेस को मैनेज करें, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और बच्चों को इसलिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस चीज को ग्रहण किया, उन्हें समझा। धन्यवाद। और आशा करता हूं कि इस जगह पे आप बार बार आए, जैसे हमारे बच्चों को और इनलाइटन करें और अपनी प्रैक्टिकल बने। जय हिंद। सर